Okay, dear student, today we are going to solve this transaction which is on your monitor. From following transaction related to Sundar and company, prepare cash book with two column, that is cash and with bank column. So all these transaction first I will explain you theoretically and then I will solve the same. The transaction is given for the month of September. On 1st September, the balance is given. Bank as well as cash, both balances are given. So this balance is the opening balance, and this we have to show to the debit side of cash book, that is to the receipt column, and we have to write to balance B/D, and bank balance amount 52,000 we have to show in the bank column, and cash balance amount 15,000 we have to show to the cash column. So this 52,000 will be in bank column and 15,000 will be to the cash column. So these two transactions on 1st September, this transaction is for opening balances, and accordingly we have to show to the debit as two balance brought down, that is BD. And then on 4th September, purchase goods and payment made by check. So in this transaction it is clearly given that goods has been purchased, गुड्स खरीदा है, परचेस किया है मतलब खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है. देन वी हैव टू मेक द इफेक्ट ऑफ दिस परचेस टू द पेमेंट साइड, to cash book, and amount this 15,000 we have to show to the bank column, this 15,000, because payment is made by the check. Information, when information is there for payment that it is made by check, then it means this transaction is a bank transaction and payment is being made by the bank, and therefore we have to show the payment to the bank column. So 15,000 we have to make the entry of this 15,000 to the bank column. So in this transaction, two things we have to take in our care, that is, first thing it is purchase. Because of purchase we have to make the effect of this purchase to the payment side, and the second thing is check. So check is there, means this is banking transaction, and we have to make the effect of this 15,000 to payment side bank column. And then after that, transaction on 8th September, sold goods for cash. So this transaction is sales transaction. सोल्ड किया है, बेचा है तो पैसा आएगा, पैसा आ रहा है, फॉर कैश क्लियर कट दिया है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, and therefore we have to show the effect of this transaction to the receipt side, and receipt side we have to write the to sales account, and amount this 8,000 we have to show to the cash column. Why? Because this is cash transaction, and therefore we have to show the 8,000 to the
cash column of the cash book. And narration below that narration, for every transaction I am saying you, we have to write the narration also. Narration we have to write below the effect, that is being sold goods for cash. So transaction for sales, we have to make the entry to the receipt side, and amount we have to put to the cash column, this 8,000. Cash column of the cash book. And then after that, transaction on 30th September. Purchase machinery and payment made by check. मशीनरी खरीदा और उसका जो पेमेंट किया वो चेक से किया है. So purchase is there, and therefore we have to make the effect of this purchase to the payment side. Payment side means credit side. We have to make the effect of this to the credit side of cash book, and we have to write by purchase account. And being a payment made by check, and therefore the 10,000, this 10,000 amount, we have to make the effect of 10,000 to the bank column. Why? Because the payment is made by check. क्योंकि जो पेमेंट दिया है मशीनरी का वो चेक से पेड किया है, इसके लिए जो 10,000 का इफेक्ट होगा वो बैंक कॉलम में आएगा. And below that we have to write the narration also. Narration we have to write in bracket being purchase machinery and payment made by check. And then after that, transaction number, next transaction, that is on 16th September. Sold goods and received check, and in bracket there is information deposited same day and close the bracket, that is 12,000 rupees. देखो यहाँ पे सोल्ड किया है, गुड्स को बेचा है, सोल्ड गुड्स हैज बीन सोल्ड किया है, तो इसका मतलब है कि ये कहाँ पे आएगा, रिसीप्ट साइड में. रिसीप्ट साइड मीन्स डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक. सो डेबिट साइड टू कैश बुक वी हैव टू राइट टू सेल्स अकाउंट. टू सेल्स अकाउंट, एंड जो उसका अमाउंट है वो कैश में चेक से मिला है, लेकिन वो चेक ऑन द सेम डे इट हैज बीन डिपॉजिटेड टू द बैंक. तो इसके लिए ये जो 12,000 रुपीज है, इसका जो इफेक्ट है वो कैश कॉलम में नहीं आएगा, वो बैंक कॉलम में आएगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिया है ब्रैकेट में कि जो चेक मिला उसको हमने बैंक में डिपॉजिट किया उसी दिन, सेम डे को. अगर ये सेम डे नहीं होता या ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता डिपॉजिटेड सेम डे, या तो यहाँ पे अगर दिया होता डिपॉजिटेड टू नेक्स्ट डे, तो फिर ये 12,000 जो हम बैंक में लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, कैश में. लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर कट हमको दिया है कि चेक उसी दिन को डिपॉजिट किया गया बैंक में, सेम डे को चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया. इसके लिए ये 12,000 का जो इफेक्ट है वो हम लोग कहाँ पे करेंगे,
बैंक कॉलम में। यहाँ ध्यान देना है ये बात पे। सो दिस 12,000 वी हैव टू मेक द इफेक्ट ऑफ दिस 12,000 टू द बैंक कॉलम। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 17 सितंबर को। परचेस गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मृणाल। मृणाल से गुड्स खरीदा है, परचेस किया है। तो परचेस है तो इसका जो इफेक्ट है वो पेमेंट को आएगा, क्योंकि हम खरीद रहे हैं गुड्स को। खरीद रहे हैं मतलब वो हमसे खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर होगा तो हमको कहाँ पे बताना है? पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में बताना है मतलब वो कहाँ पे? क्रेडिट साइड में। कैश बुक के क्रेडिट साइड को इसका इफेक्ट हम देंगे। इसको हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। और जो ये अमाउंट है यहाँ पे कैश दिया हुआ है, फॉर कैश दिया हुआ है, इसके लिए अमाउंट को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? ये 18,000 अमाउंट जो है हम लोग कैश कॉलम में लिखेंगे। कैश कॉलम में इसकी एंट्री होगी और नरेशन होगा बीइंग परचेस गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मृणाल। तो ये हम जो नरेशन है नीचे लिखेंगे, पोस्टिंग के नीचे हम लोग बीइंग करके ये नरेशन लिखना है। और ये अमाउंट जो 18,000 आएगा ये हमें कैश कॉलम में लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 20 सितंबर को। परचेस स्टेशनरी एंड पेड बाय चेक। फिर से परचेस का ट्रांजेक्शन है ये। अफकोर्स परचेस किया है मतलब ये एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब हमने पेमेंट किया है। तो ये पेमेंट साइड में इसका इफेक्ट आएगा। पेमेंट साइड में हम लोग लिखेंगे इसको बाय परचेस अकाउंट। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लियर कट दिया है एंड पेड बाय चेक। और उसका जो अमाउंट है, जो परचेस का अमाउंट है, उसको हमने चेक से पेड किया है। तो चेक से पेड किया है तो ये 2,100 का जो एंट्री होगा वो कौन से कॉलम में होगा? कैश में होगा क्या बैंक में? नाउ दिस इज क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, whether we have to make the effect of 2,100 in cash column or we have to make the effect to the bank column. If the payment made by check, of course we have to make the effect to the bank column. तो इसका जो इफेक्ट होगा वो कहाँ पे आएगा? बैंक कॉलम में आएगा। हम लोग इसको, ये अमाउंट को बैंक कॉलम में लिखेंगे 2,100। और फिर ट्रांजैक्शन के नीचे नरेशन आएगा बीइंग परचेस स्टेशनरी एंड पेड बाय चेक। स्टेशनरी खरीदा और पेमेंट किससे किया? चेक से किया। देन उसके बाद में the next transaction is on 24th September. Check given to अवधूत। चेक गिवन टू अवधूत, चेक अवधूत को दिया तो इसका मतलब है कि ये पेमेंट हुआ। बिजनेसमैन ने पेमेंट किया, किसको किया? अवधूत को। और पेमेंट कैसे किया है? चेक के थ्रू किया है। तो इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? ऑफकोर्स इसका इफेक्ट पेमेंट साइड को जाएगा। पेमेंट साइड मतलब कैश बुक का कौन सा साइड? डेबिट साइड क्या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड में जाएगा। अच्छा, क्रेडिट साइड में इसका इफेक्ट जाएगा
तो क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय अवधूत अकाउंट, और अमाउंट जो है ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है वो है 1800। तो 1800 का इफेक्ट हम लोग कहां पे मारेंगे, कैश कॉलम में मारेंगे क्या बैंक कॉलम में? ऑफकोर्स बैंक कॉलम में मारेंगे। क्यों? क्योंकि चेक दिया है अवधूत को, क्योंकि पेमेंट हमने चेक से किया है, और जब हम पेमेंट चेक से रिलीज करते हैं तो फिर उसका जो इफेक्ट है वो हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, बैंक कॉलम में। एंड देयरफॉर वी हैव टू मेक द इफेक्ट ऑफ दिस 1800 टू द बैंक कॉलम टू कैश बुक, और फिर उसके बाद में उसके नीचे हम लोग नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड टू अवधूत बाय चेक। यहाँ पे क्लियर कट लिखेंगे हम लोग, बीइंग पेड टू अवधूत बाय चेक। उसके बाद में फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है 27 सितंबर को, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, cash withdrawn from bank. Now here I am asking to all of you, just you people tell me the nature of this transaction. Either these transactions will have contra effect or single effect. बिजनेसमैन ने कैश बैंक से निकाला, तो यहाँ पे क्या इसका सिंगल इफेक्ट होगा, नॉर्मल इफेक्ट होगा या कॉन्ट्रा इफेक्ट होगा? कॉन्ट्रा इफेक्ट मैंने आपको बताया है, जिस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दोनों साइड में करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आता हो, मतलब जिसका इफेक्ट रिसीप्ट में भी आता हो और जिसका इफेक्ट पेमेंट को भी आता हो, तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो व्हाट अबाउट दिस ट्रांजैक्शन व्हेन बिजनेसमैन विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक? देखो यहाँ पे सिर्फ इतना दिया है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक मीन्स दिस विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज, ये विड्रॉ हुआ है ऑफिस यूज के लिए। तो इसका कौन सा इफेक्ट होगा, क्या नॉर्मल इफेक्ट होगा या कॉन्ट्रा एंट्री होगी इसकी? ऑफकोर्स इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रा होगा, कॉन्ट्रा एंट्री होगी इसके अंदर। मतलब इसका जो इफेक्ट है वो दोनों साइड में आएगा, पेमेंट में भी आएगा और रिसीप्ट में भी आएगा। लेकिन यहाँ पे पेमेंट किससे होगा, पेमेंट बैंक से होगा, और रिसीप्ट किस में आएगा, रिसीप्ट कैश कॉलम में आएगा। ये ध्यान देना है आपको। मतलब जब हम पेमेंट दिखाएंगे तो पेमेंट साइड में हम लोग ये 12,000 की एंट्री बैंक कॉलम में करेंगे, और जब करस्पॉन्डिंग इफेक्ट उसका रिसिप्ट में दिखाएंगे तो रिसिप्ट में लिखाते समय उसकी एंट्री हम लोग ये 12,000 की एंट्री कहाँ दिखाएंगे, कैश कॉलम में दिखाएंगे। और दोनों के सामने लेजर फोलियो कॉलम में कैपिटल में बड़ा लेटर में सी लिखेंगे, जो कि कॉन्ट्रा का सिंबल होता है। So now the transaction on 27 September, the effect is very clear. The cash withdrawn from bank will have contra effect. The first effect, it will go to the payment side of bank column, and the second effect will go to the receipt side in cash column. And we have to write amount 12,000 in bank as well as in cash column. और दोनों के सामने लेजर फोलियो में कैपिटल में सी लिखेंगे, जो कि कॉन्ट्रा एंट्री का सिंबल होता है। Then after that, transaction on 30 September. पेड रेंट बाय चेक, ये सिंपल ट्रांजेक्शन है, पेड किया है मतलब सीधा है, सिंपल है, या ये पेमेंट हुआ है।
और जब हमें पता चल गया पेमेंट हुआ तो इमीडिएट वी हैव टू मेक दिस इफेक्ट टू द पेमेंट साइड इन कैश बुक। पेमेंट साइड का मतलब है कि वो कैश बुक के क्रेडिट साइड में ये एंट्री आएगी। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, और यहाँ पे पेमेंट के बारे में दिया है तो पेमेंट बिजनेसमैन किससे कर रहा है, चेक से कर रहा है। चेक से कर रहा है मतलब वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो गया। पेड रेंट बाय चेक, चेक बोले तो वो सीधा बैंक ट्रांजैक्शन हो गया। और जब बैंक ट्रांजैक्शन हो गया तो जो अमाउंट है उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैंक कॉलम में आएगा। तो ये 500 अमाउंट जो है वी हैव टू मेक द इफेक्ट ऑफ दिस 500 टू द बैंक कॉलम इन कैश बुक बिकॉज पेमेंट इज मेड बाय चेक। और फिर उसके बाद में इसका जो नरेशन होगा वो नरेशन हम लोग ब्रैकेट में बीइंग करके लिखेंगे, बीइंग पेड रेंट बाय चेक। और फिर उसके बाद में 30 सितंबर को दूसरा ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी, तो ये भी पेमेंट में जाएगा। पेमेंट साइड को ही हम इसकी एंट्री करेंगे। पेमेंट मतलब क्रेडिट साइड में कैश बुक के बाय सैलरी अकाउंट, और ये जो 4000 है वो इसकी एंट्री कैश कॉलम में होगी। सो वी हैव टू मेक द इफेक्ट ऑफ दिस 4000 to the cash column of the cash book, और उसके नीचे हम लोग नरेशन लिखेंगे being paid salary। तो ये पूरा प्रॉब्लम मैंने आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया, कौन से ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा और अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा, कौन से ट्रांजैक्शन की कॉन्ट्रा इफेक्ट होगी, कॉन्ट्रा इफेक्ट कैसा होगा। So total theoretical explanation. After that, now the same problem I am going to solve. Now इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कितने कॉलम करना है इसके अंदर। We have to draw 12 कॉलम्स। इसमें 12 कॉलम्स होंगे। Receipt side and payment side, two sides are there. Now first column will be date column, second column will be that is receipt column, and then after that RT number column, that is receipt number, and then LF, and then after that cash column, and then after cash there will be bank column, and then payment side we have to make the column of date, and then payment side column is there, we have to write the payment. Remember one thing is very important, column of receipt and column of payment should have wider
place. And then after that we have to make the column for voucher number, that is V number. And after V number, then there is a column for LF, and then two columns, that is one for cash and one for bank. So now we have to write the name of column. The first column is the column of date, then second is the receipt, then RT number, LF, cash, bank, date, payments, V number, LF, cash, bank. And now we have to write the title, that is two column cash book, and here we have to write in the books of Sundar and Company, in the books of Sundar and Company. उसके बाद में जो पहला ट्रांजेक्शन है यहाँ पे on 1st September there is balances given, बैंक as well as cash दोनों भी balances दिया हुआ है. तो ये हम रिसिप्ट साइड में यहाँ पे पहले डेट लिखेंगे 2018 एंड दिस इज September 1st. तो यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस BD, और कैश का अमाउंट कैश में आएगा और बैंक का अमाउंट बैंक में आएगा. तो कैश में 15,000 और बैंक में 52,000. उसके बाद में 4th को है 4 सितंबर को परचेस गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक. गुड्स खरीदा है, परचेस किया है, तो इसका इफेक्ट पेमेंट साइड में आएगा. और ये यहाँ पे फिर से हमको डेट लिखना है, दैट इज 2018 September 1st. और यहाँ पे बाय आएगा, पेमेंट साइड में बाय लिखते हैं, बाय परचेस अकाउंट. और पेमेंट जो है चेक से हुआ है, तो इसका जो 15,000 अमाउंट है ये बैंक कॉलम में आएगा और बैंक कॉलम में हम लोग लिखेंगे 15,000. उसके बाद में 8 तारीख को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश. तो ये सोल्ड हुआ है तो ये रिसिप्ट में आएगा. तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड में 8, तो यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट जो है वो कैश में आएगा. अमाउंट कैश कॉलम में 8,000 लिखेंगे, 8,000. नरेशन आपको लिखना है, यहाँ पे नीचे नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन यू हैव टू राइट नरेशन हियर. 8,000. उसके बाद में 13th परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक. 13 तारीख को परचेस किया है तो परचेस का इफेक्ट पेमेंट में आएगा. 13 को बाय परचेस अकाउंट. और पेमेंट मेड बाय चेक दिया है तो ये 10,000 का एंट्री कहाँ पे आएगा, बैंक में 10,000.
उसके बाद में 16th को है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड सेम डे 12,000। तो सोल्ड किया है तो रिसिप्ट में आएगा, रिसिप्ट में यहाँ पे डेट लिखना है 16th टू सेल्स अकाउंट, और इसका जो अमाउंट है 12,000 वो सीधा हम लोग बैंक में लिखेंगे क्योंकि चेक से मिला और वो तुरंत बैंक में जमा कर दिया। तो दिस 12,000 वी हैव टू राइट टू द बैंक कॉलम। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 17 सितंबर को परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मृणाल। परचेस है तो इसकी एंट्री पेमेंट साइड में आएगी और पेमेंट साइड में इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे 17 बाय परचेस अकाउंट। और परचेस है तो यहाँ पे कैश में है, कैश में पेमेंट किया है तो 18,000 कहाँ पे आएगा, कैश में 18,000 वी हैव टू राइट टू द कैश कॉलम। उसके बाद में नेक्स्ट है 20 सितंबर को परचेज स्टेशनरी एंड पेड बाय चेक। ये भी परचेस है तो ये भी कहाँ पे आएगा, पेमेंट साइड में। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे 20 बाय परचेस अकाउंट, और पेड बाय चेक है तो इसका जो अमाउंट है वो डेट में, वो अमाउंट बैंक में आएगा 2,100 बैंक कॉलम में आएगा क्योंकि पेमेंट हमने चेक से दिया है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक गिवन टू अवधूत, दैट इज ऑन 24 सितंबर। तो ये भी जो है पेमेंट में आएगा, 24th चेक गिवन टू अवधूत, तो यहाँ पे आएगा पेमेंट साइड में बाय अवधूत अकाउंट। बाय अवधूत अकाउंट, और अमाउंट दिया है 1,800 तो सीधा इसका इफेक्ट बैंक कॉलम में आएगा 1,800। क्यों, क्योंकि ये जो पेमेंट है ये पेमेंट अवधूत को कैसे दिया है, चेक के थ्रू दिया हुआ है। दिस पेमेंट इज बीइंग मेड टू द अवधूत बाय चेक, so we have to make the effect of 1,800 to the bank column of cash book क्योंकि ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। वो फिर उसके बाद में 27th का कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये मैंने आपको अभी बताया था, इसका कॉन्ट्रा एंट्री होगा, इसका इफेक्ट दोनों साइड में आएगा। तो पहले हम लोग इसको पेमेंट दिखाएंगे 27 को, और पेमेंट कहाँ से होगा, बैंक से होगा। तो जब हम बैंक में यहाँ अमाउंट लिखेंगे तो यहाँ पे कैश का नाम आएगा, बाय कैश अकाउंट। और यहाँ पे LF, जो यहाँ LF लिखे यहाँ पे हम लोग कैपिटल में C लिखेंगे, और इसके आगे यहाँ पे बैंक में अमाउंट डालेंगे, दैट इज 12,000। और फिर उसके बाद में यहाँ पे रिसिप्ट साइड में इसकी एंट्री यहाँ फिर से लिखेंगे 27th। अब ये जो हमने बैंक में 12,000 लिखा था,
अब ये ही 12,000 कहाँ पे आ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा कैश में यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ हम कैश में लिखेंगे तब यहाँ पे हम पर्टिकुलर में किसको लिखेंगे, बैंक को। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट होगा 12,000 और एलएफ में कैपिटल में सी लिखेंगे। तो ये सी दोनों साइड में आ गया, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, मतलब ये बैंक में भी और यहाँ पे कैश में, पेमेंट भी और रिसिप्ट भी। उसके बाद में 30 सितंबर को पेड रेंट बाय चेक, तो यहाँ पे पेमेंट होगा, पेड किया है मतलब पेमेंट साइड में यहाँ पे आएगा डेट 30 बाय रेंट अकाउंट, और अमाउंट जो है ये बैंक में आएगा क्योंकि पेमेंट चेक से हुआ है, तो यहाँ पे ये 500। उसके बाद में फिर उसके बाद में पेड सैलरी, ये भी पेमेंट ही है, तो पेमेंट है तो ये भी 30 तारीख को सेम आएगा बाय सैलरी अकाउंट, और अमाउंट यहाँ पे ये कैश में आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ डिटेल दिया नहीं है, तो वी हैव टू मेक द इफेक्ट टू द कैश 4,000 बाय सैलरी अकाउंट 4,000। तो ये अभी इफेक्ट हो गया हमारा। नाउ वी हैव टू टैली, अब इसको हम लोग टैली करेंगे। तो टैली करते समय हमको ध्यान ये देना है कि हाईएस्ट टोटल जो है रिसिप्ट साइड का है, दोनों साइड में दो कॉलम छोड़ के दोनों साइड में अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। और रिसिप्ट साइड का टोटल मारेंगे 15,823.25, दैट इज 35,000। तो कैश का 35,000 आएगा ये टोटल, और ये आएगा 64,000। सेम टोटल यहाँ पे लिखेंगे 35,000 और 64,000। और अब जो है ये टोटल जो 18,000 और 4,000, टोटल 22,000, ये 18 और 4,000 22,000 को 35,000 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर इसका 13,000 आएगा, 13,000। ये 18 + 4 22,000, इस 22,000 को 35,000 में से माइनस किया तो ये 13,000 आया। उसके बाद में अभी ये 15,000, 10,000, 2,100, 1,800, 12,000 और 500 सबका टोटल करेंगे। उस टोटल को हम 64,000 में से माइनस करेंगे तो आएगा 22,600। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे ये सितंबर है तो ये 30, लास्ट में भी 30 आएगा बाय बैलेंस CD। और ये जो बैलेंसिंग फिगर आया 13,000 और ये 22,600, ये हम अभी ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में। यहाँ पे फिर से लिखेंगे 2018 सितंबर के बाद हमारा मंथ जो है वो अक्टूबर आता है, अक्टूबर 1, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD, और यहाँ पे होगा 13,000 कैश का और बैंक का आएगा 22,600। So in next lecture we will solve some new transaction.